Good afternoon, everybody. I am Sanya, your host for today's live from All About Skin Wellbeing Team. I am sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about a skin healthy with focus on urticaria or hives, which we are or our near and dear ones would have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by brown rash on the skin that itch intensely, and it may due to chemicals in certain foods, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is unknown. As per study published in India Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidence is higher in older age group also. Urticaria is usually classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it, and doing self-medication can worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert of dermatology online about urticaria and its type. How can we prevent it, and also the kind of test required for its diagnosis, the right treatment, and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, girls and boys, today we have with us renowned practicing dermatologist of India, Dr. Lata Rijwani from Jaipur. She has years of experience in this field, and her skill and compassion have made a tremendous difference in patients' life. A very warm welcome to Dr. Lata Rijwani. It's a pleasure, Dr. Lata Rijwani, to have you with us today. Thank you so much for your kind introduction, and thanks for having me. The pleasure is equally mine. Thank you so much, ma'am. And ma'am, as we are going to discuss today about urticaria and which are also called hives. And जैसे कि अभी मैंने कहा कि there are round rashes और बहुत सारे कारणों की वजह से urticaria होता है. So अगर हम बात करें अगर urticaria की, so what is basically urticaria? Yeah. सानिया, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है अर्टिकेरिया के बारे में, बट अगेन आई विल रिपीट फ्यू पॉइंट्स. अर्टिकेरिया बेसिकली जो हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पित्ती या पित्त भी इसको कॉमनली हमारे एरिया में बोला जाता है. और इसमें बेसिकली आपको इची प्लाक्स हो जाते हैं, बहुत ही जैसे रेड बम्प्स होते हैं स्किन पे. कई बार पेशेंट कहते हैं जैसे चींटी ने काट लिया था, उस तरह के. दैट टिपिकली दे डिस्क्राइब इट. और सडन अपीयरेंस होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है. ऑल ऑफ सडन पेशेंट इज फाइन and the red itchy bumps, they appear on skin, and most of the times जब तक patient हमारे पास आता है तो skin is absolutely normal. और कई बार सिर्फ photographs उनको दिखाने पड़ते हैं, although उनके description से for us it's there is no difficulty in diagnosing, but ये characteristic है that it's a transient itchy red or pale colored bump, and वो कितना duration रहता है उसकी बात हम बाद में करेंगे, but typically this is how we describe urticaria. Okay, and ma'am, as you said कि कभी-कभी जब patients आपके पास आते हैं तो वो दिखता भी नहीं है. That is the point. Skin is absolutely normal, as if nothing happened. Okay, right. मतलब it is very, you know, what I can say कि कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, but it is there. और कभी-कभी लोग जब self medication करते हैं, that is a problem. मतलब you know, not going to a dermatologist and self medication is a problem, right, ma'am? Yeah, definitely. So, ma'am, when we are talking about urticaria, as you said, it's itchy, it's red, and sometimes it is not there, but still the skin have some issues. When we talk about the causes, you know, किन कारणों से urticaria होता है? Are there any lifestyle changes or sunlight, or what are all the causes, doctor, of urticaria? Yeah, so before discussing the causes, we need to classify the urticaria. सबसे पहले important है history taking. So we have to classify whether the urticaria is acute or it has been there for a while.
तो इफ इट इज देयर फॉर लेस देन 6 वीक्स, या कई बार होता है कि कल से ही है, 2-3 दिन से है, तो दैट इज एक्यूट अर्टिकेरिया, उसके कॉजेस थोड़े अलग होते हैं. देन देयर आर पेशेंट्स, उसमें उनमें क्रॉनिक रेकरेंट ये सिलसिला चलता रहता है, कभी है कभी नहीं है, कभी वीकली हो रहा है. तो अगर 6 वीक से ज्यादा ड्यूरेशन का अर्टिकेरिया है, देन वी लेबल इट एज chronic urticaria. So once we have categorized our patient, then it is important. So acute urticaria में commonly जो हम causes देखते हैं, that is mostly an infection. It could be a viral infection, common cold हुआ, sore throat हुआ, लोगों को डेंगू होता है, कोविड जब हुआ था फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, यूटीआईज हैं, सोर थ्रोट है, तो कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिस्ट्री मिल जाती है इसकी. अगर ये नहीं तो कोई मेडिकेशन की हिस्ट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा नोटोरियस होते हैं पेन किलर्स, एनएसएआइड्स, जो लोग कॉमनली थोड़ा सा सर दर्द हुआ घर में उठा के पेन किलर ले लिया. एंटीबायोटिक्स आर आल्सो कॉमन कल्प्रिट. तो देन फूड में भी अगर एक्यूट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिस्ट्री से वी कैन इजीली पॉइंट आउट कि पेशेंट ने ऐसा क्या खा लिया था. ऑल्दो इतना इंसिडेंस फूड का नहीं है जितना कि समझा जाता है, बट फूड हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो. देन यू हैव टू, हॉर्मोन्स का थोड़ा बहुत इसमें रोल होता है. कई बार प्री मेंस्ट्रुअली जो है पेशेंट टिपिकली दे पॉइंट कि हमें इस तरह का रैश हो जाता है. कई बार बाइट्स होते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है, कहीं इंसेक्ट बाइट है, कुछ अलग तरह के जो पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस हैं, वर्म्स हैं, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री कई बार मिल जाती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी अर्टिकेरिया देखा गया है. सो ये सब कॉमन कॉजेज हैं जो एक्यूट अर्टिकेरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर एबल टू पॉइंट आउट. ओके, तो जैसे कि आपने, हाँ जी, यस प्लीज कंटिन्यू. क्रॉनिक अर्टिकेरिया में कॉजेज आर स्लाइटली डिफरेंट. क्रॉनिक में अगेन दो तरह के क्रॉनिक हम देखते हैं. एक तो क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया है, जिसका कोई भी ट्रिगर नहीं है. पहले इसको इडियोपैथिक अर्टिकेरिया भी कहा जाता था. 50 to 60% ऑफ द टाइम्स में क्रॉनिक में हमें पता नहीं चलता है कि व्हाट इज द कॉज, एंड वी लेबल इट एज इडियोपैथिक. जो बाकी के परसेंटेज हैं उसमें आइदर इंड्यूसिबल है, कोई फिजिकल एजेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें कोल्ड अर्टिकेरिया, हीट अर्टिकेरिया, कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया, प्रेशर इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया, कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया, किसी चीज से कॉन्टैक्ट हो गया, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे एकदम कॉन्टैक्ट हुआ और पेशेंट को डेवलप हुआ. तो ये सब केयरफुली हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. वेरी सिंपल लगता है, बट हिस्ट्री गिव्स अ लॉट ऑफ हेल्प टू अस. Right. So whenever a patient comes to you, पहले आप उनसे पूछते हैं कि last few weeks में, what all activities they have done, if they have traveled. जैसे कि आपने बताया कभी-कभी travel करने की वजह से, insect biting की वजह से, food की वजह से, ये सारे causes होते हैं urticaria के. And as doctor said, there are 2 types of urticaria, acute and chronic. So अगर आपको ऐसे कोई भी symptoms हैं, so do go to a nearby dermatologist, which is very important. मैम, कई बार ऐसा होता है कि अर्टिकेरिया, द रेड रैश, और सनलाइट में एक्सपोज होता है तो वो ज्यादा इचिंग, ज्यादा बर्न करता है. सो इफ आई टॉक अबाउट द सनलाइट एक्सपोजर, और इट इज अ काइंड ऑफ एलर्जी, क्या इसे हम कहेंगे कि सनलाइट से एलर्जी है? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि धूप में जाते हैं तो वो ज्यादा बर्न होता है, ज्यादा इची होता है. सो इट इज अ काइंड ऑफ अ एलर्जी, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि अगर पर्टिकुलर एक स्पॉट है या रेड स्पॉट है तो दैट इज अर्टिकेरिया. लाइक हाउ अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज पर्टिकुलरली अर्टिकेरिया, दिस एग्जैक्टली अर्टिकेरिया लुक्स लाइक, एंड दिस इज द एलर्जी. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, 2 चीजें हैं. एक होता है फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस. डर्मेटाइटिस और अर्टिकेरिया को ले पर्सन काफी कंफ्यूज कर सकते हैं. डर्मेटाइटिस विल बी परसिस्टेंट. आपको कोई रैश है, इट इज परसिस्टिंग, पर आप धूप में गए, एकदम और लाल हो गया और इची हो गया, बढ़ गया. अदर थिंग इज, जो मैंने फिजिकल अर्टिकेरिया की बात करी, उसमें एक सोलर अर्टिकेरिया विच इज सन इंड्यूस्ड. यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आपको कुछ नहीं था स्किन पर, और आप बाहर गए, सन एक्सपोजर हुआ, एंड देन सडनली यू स्टार्टेड अर्टिकेरिया. सी, फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम एम्फसाइजिंग दैट एक ट्रिगर मिलते ही अचानक से एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाता है. वेदर इट्स ए कॉन्टैक्ट विद अ प्लांट. कई बार लोग बोलते हैं हम सुबह ठीक थे, गार्डनिंग करने गए और फिर देखिए ऐसा हो गया. किसी प्लांट से कॉन्टैक्ट हुआ, उसके फ्लूइड से,
या फिर कोई वहां पॉलन का कुछ हुआ, तो सन इज अ कल्प्रिट समटाइम्स, बट देन अगेन डर्मेटाइटिस और अर्टिकेरिया जो है उसको इंटरचेंजेबली हम यूज नहीं कर सकते। डर्मेटाइटिस इज बिल्कुल डिफरेंट, एलर्जिक कंपोनेंट दोनों में है, बट जो अर्टिकेरिया है उसका जो मैकेनिज्म है, जो पैथोजेनेसिस है, दैट इज डिफरेंट। बट यस, सन कुड बी अ ट्रिगर इन अर्टिकेरिया. सोलर अर्टिकेरिया इज अ टर्म फॉर दैट. या दैट मीन्स कि वो सही बात है जब लोग बोलते हैं कि सन एक्सपोज होता है तो इचिंग बढ़ जाती है, the red, सन से भी ज्यादा टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट. जो कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया है उसमें जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो हो जाएगा. कई बार लोग बोलते हैं एसी में बैठे थे ठीक था, बाहर गए तो एकदम ऐसा लगा कि बहुत सारी चींटियों ने काट लिया. दिस इज वेरी टिपिकल. सो सन से ज्यादा जो टेम्परेचर का चेंज है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन फिजिकल अर्टिकेरिया, कि बहुत गर्मी से ठंड में आ गए या वाइस वर्सा. So that means कि हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि whenever you are sitting somewhere from 2-3 hours in AC और अचानक से आप सनलाइट एक्सपोजर में जाते हैं, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ऑफ टेम्परेचर कुड इमीडिएटली ट्रिगर द अर्टिकेरिया जो बहुत दिन तक ठीक था. बहुत दिन तक जो ठीक था और आपकी बॉडी में नहीं आपको दिख रहा था, अचानक से it comes. Right, absolutely right, ma'am. And ma'am, as we have discussed, there are two types of urticaria, acute and chronic. So as you said, chronic urticaria, or how will they go away, and are they like serious? Sometimes people also scared कि अब ये हो गया है तो what is the next point, क्या ये spread हो जाएगा? Sometimes people also think कि यार अब मुझे itchiness है, मुझे redness है, तो मैं कोई ऐसी चीज टच ना करूं जिससे ये फैले. So please उस पे जरूर लाइट हम चाहेंगे कि हम उस पे जरूर बात करें कि chronic urticaria hives जो है, are they dangerous, are they treatable, or how will they go away? सी इसके साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज पेशेंट तंग हो जाते हैं कि हम कितने टाइम से, जब तक हम दवाई लेते हैं ठीक रहता है, द मोमेंट वी स्टॉप द मेडिसिन इट कम्स अगेन. सो अगेन इसमें वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसिल देम दैट इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग डिजीज, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर. इट कैन टेक लॉन्ग डिपेंडिंग कि उनकी बॉडी में उसका ट्रिगर क्या है एंड व्हाई इज इट हैपनिंग. फॉर एग्जांपल, chronic urticaria is very common in thyroid patients. तो अगर आपके उनको एसोसिएटेड थायराइड है फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड लेवल इज नॉट कंट्रोल्ड या अनट्रीटेड है, कई बार फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ डायग्नोज होता है कि दे आर हैविंग हाइपोथायराइडिज्म बिकॉज वी इवैल्यूएट, तो जैसे ही उनके थायराइड पे कंट्रोल होता है तो अर्टिकेरिया स्टार्ट्स गेटिंग बेटर. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इंटर रिलेटेड. सो वी हैव प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर एजुकेशन, एंड उनको बताना है कि बहुत ही पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट लेना. अब हम ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें लगता है अब 10-15 दिन से हम ठीक हैं, they stop the course, again they get the same thing, and again we have to start, and then we have to step down. So I think कि किसी भी chronic बीमारी में पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट एजुकेशन, assurance is very important. Of course it is 100% treatable, it's not going to stay forever, there's no need to panic, but only thing is that you have to follow up regularly, and it is always better to follow up with one doctor, ताकि they know what's going on in your body and they can just titrate the doses and they can step up or step down the treatment, rather than आज इनको दिखाया कल उनको दिखाया, and switching places doesn't help. Right. And I think people, when they panic, they think कि अब क्या होगा, so चलो यहाँ पे भी we should consult this doctor, then again the doctor. But as you said that एक ही डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो उनको आपकी हिस्ट्री पता होगी कि what are the causes of urticaria, या फिर ये recent या past history जो है इस वजह से आपको urticaria होता है, बार बार होता है. एंड जैसा कि मैम ने कहा कि वो कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और कई बार मैम ऐसा होता है कि लोग 15 डेज, एज यू सेड कि आपके पास भी कई सारे पेशेंट आते हैं, 15 डेज का कोर्स किया, ठीक हो गए, देन दे डोंट कम टू यू नेक्स्ट, उनको लगता है कि ठीक हो जाता है. सो आई थिंक ये लोगों को नहीं करना चाहिए. अगर एक डोज है, एक पूरा एक मेडिकेशन है, दे शुड ट्रीट इट firstly
तभी रीअकरेंस के चांसेस कम हाँ है जी, सर। डोज को प्रॉपरली टेपर करके हम लोग बंद करते हैं। मोस्ट ऑफ द कई पेशेंट्स वंस वीकली भी मेडिसिन पे कंट्रोल्ड है एंड वन फाइन डे दे आर ऑफ मेडिकेशन एंड दे आर ऑफ अर्टिकेरिया। बट इफ you keep on playing with the tablets on your own, most of the times it will not help. राइट एंड पीपल अक्सर लोग ऐसे कहते हैं नो कि वही दवाई रिपीट कर देते हैं कि ये जी। हमने खाई थी लास्ट टाइम जब हुआ था, तो ये दे गो टू अ मेडिकल स्टोर एंड सेड कि ये वाली एलर्जी की दवाई आप दे दें। And I think that is, you said कि you should not do that. You should go and consult a Yeah, doctor. there should be proper follow-up so that your doctor knows when to step up the treatment, when to change the medication. See, there are a lot of treatment options. Right. So, एक नहीं help करेगा तो दूसरा help करेगा. तो this way, but it is completely curable. Yeah. So urticaria is curable, as ma'am said, और आपको consult करना है एक dermatologist को. Ma'am, as you said, it is curable. There might be a lot of treatments available for urticaria. And if I talk about the treatment, so what are the treatment options available for urticaria, for chronic and acute both? Yeah, see, talking about the acute urticaria, as I said, most of the times history taking becomes very important. Then examination is also very important because kai baar urticaria lands up into anaphylaxis, which is an emergency. And उसके लिए बहुत important है कि patient की proper history and proper examination when the first time patient comes to you, because and उसमें एक component angioedema का भी रहता है जो हमने discuss नहीं किया. जो भी हमारे अर्टिकेरिया में जो चेंजेस होते हैं, अगर वो सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन में है तो इट प्रेजेंट्स एज इची बम्प्स ऑन द स्किन. अगर वो चेंजेस डीप डाउन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में है, देन यू कैन सी इडीमा ऑफ आईज. लोगों की आंख सूजी हो सकती है, होठों के अराउंड स्वेलिंग होगी, वेरी इट्स वेरी कॉमन. और कई बार हाथ और पांव भी अर्टिकेरिया के साथ स्वोलन हो सकते हैं. तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ बिट सिवियर फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया which needs attention, proper examination and again proper counseling of the patient. कई बार लोगों को सांस लेने में, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है बिकॉज ये इडीमा अंदर जो हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स है उनको भी इन्वॉल्व करता है. तो व्हेन फर्स्ट टाइम पेशेंट कम्स टू यू और व्हेन एनी टाइम कम, यू हैव टू इवैल्यूएट कंप्लीटली कि ये एंजियो इडीमा है या और सीवियर फॉर्म्स में तो नहीं जा रहा. वंस यू आर क्लियर दैट the urticaria is mild and it's an acute form, for example, so basically we start with an antihistaminic tablet preparations or syrups depending on the age. So histamine is the main culprit. Of course other mediators are involved. Histamine के release से ही सारा urticaria का जो changes है हम देखते हैं. So antihistamine is the mainstay of the treatment. आजकल जो न्यूअर जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स हैं जो नॉन सिडेटिंग हैं, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर नहीं करते, यू कैन गो टू वर्क इजीली, यू कैन ड्राइव इजीली, सेकंड जनरेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड देन डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में एक्यूट अर्टिकेरिया में 7 to 10 days में देयर इज एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स. ट्रिगर रिमूव करना इंपॉर्टेंट है. सपोज उन्हें किसी पेन किलर से हुआ था, एंटीबायोटिक से हुआ था, कोई इन्फेक्शन था तो वो ठीक हो गया, तो अर्टिकेरिया भी ठीक हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्यूट अर्टिकेरिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. बट हाँ, क्रॉनिक में यू नीड अगेन प्रॉपर टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, यू हैव टू स्टेप अप द थेरेपी. एक एंटीहिस्टामिन से काम नहीं चला तो उसका डोज बढ़ा दिया, दूसरा क्लास ऑफ एंटीहिस्टामिन दे दिया. उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा सिवियरिटी है तो बीच बीच में शॉर्ट कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हमें देने पड़ते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. सो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी वी हैव टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द ट्रीटमेंट. तो एज यू सेड कि सिवियरिटी के अकॉर्डिंग कि कितना ज्यादा अर्टिकेरिया है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स जो है वो करे जाते हैं. एंड मैम, एज यू सेड, अभी हमने ट्रिगर्स की भी बात की थी कि किस तरीके से सनलाइट कैन बी अ ट्रिगर फॉर अर्टिकेरिया. सो अब हमारे लाइव व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. सो टॉकिंग अबाउट द ट्रिगर, पूर्वी मेहरा इज हियर जो पूछ रही हैं कि व्हाट आर द कॉमन ट्रिगर्स फॉर अर्टिकेरिया. सी, अगर ट्रिगर्स की मैं बात करूं तो मैंने पहले लिस्ट बताई थी. फूड की चले मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ. लोगों का बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है फूड में जो नट्स हैं, पीनट्स हैं, वॉलनट्स हैं, पिस्ताशियोज हैं, ये बड़े कॉमन है. देन सी फूड इज अ वेरी कॉमन कल्प्रिट. जो शेल फिश है या किसी भी तरह की फिश है. इनके अलावा जो प्रेजर्वेटिव्स वाली चीजें हैं, कलर वाली चीजें हैं, सपोज आपने बाहर का खाना खाया, बहुत
बहुत कॉमनली हिस्ट्री मिलती है, परसों हमने खाना खाया था अचानक से, बिकॉज जो सॉसेज यूज होती हैं, स्पेशली जो चाइनीज फूड में बहुत तरह की सॉसेज, देन जो फूड कलर्स यूज होते हैं, जो प्रेजर्वेटिव्स यूज होते हैं, इवन जो हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स घर में लाते हैं, इफ दे आर इम्प्रॉपरली वॉश्ड, क्योंकि आजकल एवरीथिंग हैज पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, तो अगर आपने सपोज एप्पल खा लिया छिलके के साथ विच वाज नॉट प्रॉपरली वॉश, तो उसका भी एक छोटा सा पार्ट आते ही प्रेजर्वेटिव का, इट ट्रिगर्स। सो फूड में देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब पेशेंट आते हैं उनको हम कहते हैं अब आप घर का साफ सुथरा प्रॉपर धुला हुआ खाना खाइए। बट हाँ, नट्स और जो नॉन वेजिटेरियन फूड में फिश इज अ वेरी कॉमन कल्प्रिट, और जैसे मैंने बताया कोई भी बाहर के पैक्ड फूड्स, चिप्स, कुरकुरे, केचप, सॉसेस, then alcohol is a very common trigger also, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंसेक्ट बाइट्स आर अगेन कॉमन, बग बाइट्स हो सकते हैं, प्लांट हैंडलिंग, पेट हैंडलिंग, अगर आपके यहाँ कोई पेट है, कई लोग नया पेट लेके आते हैं फिर उनके किसी मेंबर को शुरू हो जाता है, तो वो सब जो है, चेंज ऑफ सीजन, पॉलन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, स्ट्रेस है, इफ यू अंडरगोइंग स्ट्रेस, कभी एग्जाम में शुरू हो गया, पहले कुछ नहीं था, या कोई और ऐसी इवेंट हुई, और इन्फेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई वायरल हो गया आपको, तो उसके बाद एकदम रैश शुरू हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज आई मेंशन्ड अर्लियर, उसकी भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ ट्रिगर्स। Right, right. And as we have discussed, the list of triggers, food, जैसे कि डॉक्टर ने कहा, when you eat seafood or when you eat nuts. मैम कई बार मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग पीनट से एलर्जेटिक रहते हैं. So जैसे ही वो पीनट intake करते हैं, you know, they have like itchiness and all. So is it also related to urticaria or hives? यस, सी अर्टिकेरिया के पेशेंट्स में कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री मिल जाती है फूड एलर्जीज की, स्पेशली जब बच्चे आते हैं, उनकी मदर्स से बहुत आपको पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि दीज फूड एलर्जीज मोस्टली ये बहुत यंग एज से स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो किस फॉर्म में प्रेजेंट करती है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कई बार फूड खाने, उस पर्टिकुलर चीज को खाते ही अर्टिकेरिया हो जाएगा। कई बार जो बच्चे ऑलरेडी एक्जिमेटस, एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनमें उसी डिजीज का फ्लेयर अप हो जाएगा कि कल तक तो थोड़ी माइल्ड थी, जैसे ही पीनट खाया तो मुंह के अराउंड रैश हो गया। सो अर्टिकेरिया से भी प्रेजेंट कर सकता है, एंड प्री एग्जिस्टिंग जो उनकी डर्मेटाइटिक कंप्लेंट्स हैं वो भी वर्सन हो सकती हैं। एंड पीनट्स आर वेरी कॉमन कल्प्रिट बिकॉज कॉमनली खाए भी जाते हैं। तो Right, absolutely the right. only thing is, once Yes. you know, then there is absolutely, we have to you have to prevent the child from so you have to tell the mother that now this food, since you have pointed out, you don't have to give it, And I at think least for a while. for a while, right? और उसका ध्यान रखना है कि intake particular food बिल्कुल का नहीं ना हो। हाँ जी। Right, ma'am. Ma'am, ऐसे you already told us about stress, that due to stress also sometimes urticaria occurs. So क्या difference होती है stress urticaria का, और stress से कैसे urticaria हो सकता है, and क्या वो कुछ अलग होता है, like दिखता कुछ अलग है, and how can somebody examine कि यार ये stress urticaria है या फिर ये मुझे stress की वजह से urticaria हो रहा है? देखिए सानिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट कि अर्टिकेरिया हुआ क्यों, बट अगर जो मैंने आपको चीजें बताई, फूड है, इन्फेक्शन है, इफ एवरीथिंग इज रूल्ड आउट, सी देन हम लोग, ये जो स्ट्रेस कैन कॉज एनीथिंग और एवरीथिंग, डर्मेटोलॉजी की कोई भी डिजीज स्ट्रेस कॉज भी कर सकता है, ट्रिगर भी कर सकता है। तो आई विल नॉट से दैट द प्रेजेंटेशन विल बी डिफरेंट कि हाँ ये चीज हमें पर्टिकुलरली स्ट्रेस से हुई, बट हाँ अगर आपको लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ खाया ही नहीं, देयर वाज नथिंग, ना मुझे कुछ हुआ, बट कुछ ऐसी चीज जो आपको रिसेंटली हुई, एनी इवेंट या आपका एग्जाम व्हाटएवर, देन वी कैन जस्ट से, बट द इम्पोर्टेंट इज वो हुआ तो हुआ, लेकिन अब उसको कैसे नहीं प्रिवेंट करना है, मतलब कैसे प्रिवेंट करना है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स उन पेशेंट्स में, स्पेशली जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट्स हैं, उनमें हमें वो भी, इट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ अर्टिकेरिया। अगर क्रॉनिक है तो आपको योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये हमें उन्हें बताना ही है, बिकॉज यू नेवर नो कि वो कौन सी चीज किससे हो रही है। But presentation will be absolutely same. We cannot point out as such कि ये वाला अर्टिकेरिया उससे हुआ।
Okay, तो यानी कि presentation कोई different नहीं होगा if you Yeah. have stress urticaria. And as ma'am said, stress management is must. So please don't take too much stress because it can also cause urticaria. Yes. And please consult your dermatologist if you are having urticaria. Doctor, we are talking about urticaria hives, and we have already discussed the acute and chronic urticaria. We have our viewer Advik Singh. He's asking, what should I do if my hives are severe and I'm not responding to the treatment? Yeah. See, if you have been to a qualified dermatologist and your hives are not getting controlled, I'm exactly not sure that what is the duration of your hives and why is it that we are not able to control it, because there is a lot of treatments available. Many class of antihistamines is there, as I told you. If one doesn't work, we can add on another drug. We can add oral corticosteroids for the control of hives. And still not, if it is responding, we have another newer treatments in the form of biologics, which are the anti-IgE medications in the form of injectables that are very, very effective. So I would suggest that if you follow up with a dermatologist regularly, definitely, and if your trigger is identified, which is very important, that what is the cause of your uncontrolled hives. A full blood workup is a must. Your vitamin D status should be good. Your TSH thyroid levels should be normal. So there is the disease has to be, seen as a complete, checkup of the body, so that we, most of the times we are able to identify and we are able to control it. So Right. Don't get disheartened. There are a lot of good medications available, but you have to be regular. Yes, so Vic, please be regular and go consult a dermatologist again, and I am sure कि आपका urticaria बहुत जल्द ठीक हो जाएगा. We really hope for that. And Yes. doctor, as you said, that sometimes steroids has to be given to a person for for different kind of reasons. In COVID, we have due to steroids have taken by many people. कई सारे लोगों को COVID था. So उसके बाद कई सारे लोगों ने कंप्लेन की कि ड्यू टू कोविड उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से मेरे फेस पर आर्टिकेरिया हुआ या फेस पर हाइव्स हुए. सो डू यू थिंक कि कोविड कैन बी अ कॉज ऑफ हाइव्स ऑन फेस, या फिर स्टेरॉइड से क्या आर्टिकेरिया उन्हें हुआ है? देखिए, फेस पे तो सिर्फ अर्टिकेरिया नहीं होगा. ये अर्टिकेरिया का कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज अ जनरलाइज्ड इरप्शन. स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड, आपके सर में भी खुजली हो सकती है टिल योर टोज. जो फेस पे अर्टिकेरिया हो ऐसा कुछ जो है नहीं. हाँ, एंजियोइडेमा अलोन अगर है, कई बार सरप्राइजिंगली अर्टिकेरियल रैश नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनकी आंखों में स्वेलिंग है फॉर एग्जांपल, या लिप्स सोलन है, तो एंजियोइडेमा वाला कंपोनेंट भी अराउंड 20% ऑफ द पेशेंट्स दे प्रेजेंट ओनली एज एंजियोइडेमा. या दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन. एनी वायरस, फॉर एग्जांपल डेंगू से भी हो सकता है, नॉट इन पर्टिकुलर कोविड. But articarial rash is very unlikely that it occurs unless it's a contact. अब एक contact urticaria भी होता है. Suppose आपने hair color लगाया, you didn't do the testing behind the ears, जो हम हमेशा कहते हैं, new product लाके आपने लगा दिया या कुछ नया कुछ facial करा लिया for example, उस time अगर आपको bumps हुए, that is urticaria which is due to that contact. But अगर आपको infection हुआ है तो आपको पूरी body में rash होगा. You will not get a rash on a particular area. ओके, दैट मींस आर्टिकेरिया फेस पे तो नहीं होगा, हमारा फेस इज सेफ. वायरल इन्फेक्शन से नहीं होगा, बट जो कांटेक्ट से है, सपोज आपने कुछ चीज ही सिर्फ फेस पे लगाई है, उसने आर्टिकेरिया को ट्रिगर किया, दैट इज डिफरेंट थिंग. दैट इज ठीक है ना. हाँ, जैसे कई बार मैम लोग हेयर कलर कराते हैं, देन दे कंप्लेन कि वी हैव दिस swollen face and also they should test it before they apply anything new. Or yes, any new product, anything right? for that matter. कोई भी नया सीरम या whatever new product जो आप लंबा टाइम लगाने वाले हो, उसके लिए टेस्टिंग इज अ मस्ट. Right. So please, whenever you are trying something new is always good, but please make sure that you test first that this particular thing or product suits your body type or not. Exactly.
Doctor, when we are talking about the test, so as we have already discussed, there are many triggers. There are two types of urticaria, but sometimes, as you said, that blood diffusion is also there, and for that, the tests are needed, lab tests are needed, blood tests are needed. So, why it is like necessary, and why are the lab tests needed when a person have urticaria? Yeah. See, in acute cases, most of the times the blood tests are not required. They are not advisable also because the patient, as I told you, 5 to 10 days में वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. But if it is recurrent, it is chronic, then we need to see what is going on in the complete blood profile is needed to see any signs of infection. अंदर कुछ chronic infection तो नहीं है, counts देखना बहुत जरूरी है. उसके अलावा ESR एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है. कई बार हम CRP का टेस्ट भी कराते हैं जो भी एक इन्फेक्शन का मार्कर है. स्टूल टेस्ट करा लेते हैं. पैरासिटिक इन्फेस्टेशन एज आई मेंशन बच्चों में स्पेशली बड़े कॉमन है. वर्म स्टूल में उससे भी कई बार अर्टिकेरिया होता है तो स्टूल एग्जामिनेशन ऐसे केसेस में करा लेते हैं. उसके बाद थायराइड प्रोफाइल वो मैंडेटरी होता है क्रॉनिक अर्टिकेरिया में कराना एज आई मेंशन्ड. उसके अलावा अगर हमें बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हाइव्स हैं, बार बार हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ मेडिकेशन, तो हमें IgE टेस्टिंग भी हमें करानी चाहिए टू सी द टोटल IgE लेवल्स. एंड इफ द हिस्ट्री पॉइंट्स आउट टू ए पर्टिकुलर फूड कि हमें खाने से ही हो रहा है तो वो सारा जो फूड का चार्ट है उसके अगेंस्ट एलर्जन स्पेसिफिक IgE टेस्टिंग इसको बोलते हैं. तो अगर फूड एलर्जी फॉर एग्जांपल सस्पेक्टेड है तो उस हिसाब से हमको ब्लड में जो है IgE जो है करानी पड़ती है. तो इस तरह बहुत सारे टेस्ट हैं. ब्लड टेस्ट के अलावा दूसरे टेस्ट जो स्किन प्रिक टेस्ट जिन्हें हम कहते हैं जो भी एलर्जी के लिए स्पेशली किए जाते हैं, कई बार उनको भी कराने की जरूरत पड़ सकती है. तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द कॉज रादर देन यू कीप ऑन ट्रीटिंग द पेशेंट विथ वन और अदर मेडिकेशन. तो अंडरलाइंग जो चीज चल रही है उसको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है. Right. So I think identify करना कि किस टाइप का अर्टिकेरिया है is very important, as doctor said. Doctor, when we were talking about triggers, there are some viewers asking, how can I identify the triggers that are causing my hives? Yeah. See the common triggers I have mentioned. So whenever the hives happen, suppose आज जो हुआ है आप सुबह से अपना फूड चार्ट या प्रीवियस डे का जो आपने खाया एटलीस्ट इतना तो एवरीबडी रिमेम्बर्स कि अगर आज मुझे तकलीफ हुई है तो कल मैंने कोई पेन किलर तो नहीं ले लिया था, या कल मैंने कुछ. कई बार ये होता है कि क्रॉनिक अर्टिकेरिया, फिजिकल अर्टिकेरिया स्पेशली, लोग जिम जाते हैं सडनली शुरू हो जाता है. टेम्परेचर का मैंने आपको बताया. एक डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया भी एक फिजिकल अर्टिकेरिया का फॉर्म है जिसमें जहां पे भी प्रेशर पड़ता है, सपोज आपने जीन्स पहन ली बहुत टाइट और 2-4 घंटे आप बाहर गए, उस एरिया में आपको अचानक से अर्टिकेरिया शुरू हो जाएगा. वॉचेस पहनते हैं लोग, तरह तरह की चीजें जहां पे, तो यू हैव टू, इट इज that you know what is going on in your body and what have been you eating. क्या आप पहन रहे थे, क्या एक्टिविटी आपने ऐसे नहीं करी, what new you did which trigger. So most of the times क्योंकि वो इतना short उसकी हिस्ट्री होती है कि most of the times people are able to identify. कई बार chronic urticaria as I told you 50% में idiopathic होता है. You cannot identify the cause. Whatever you do idiopathic है, अपने आप से आएगा, तो वो धीरे धीरे medications से ही one fine day it will disappear. So as you said कि chronic 50% में नहीं पता चलेगा क्या है. 50% में, yeah, 50% में they would not be able to know. Yes, there will be no identifiable cause in them. Right. और कभी-कभी तो हमें पता भी चल जाता है because when we go to gym, sweat के कारण. मैम क्या sweat एक कारण हो सकता है for urticaria? Yeah. No, cholinergic urticaria is an entity which is because of exercising, workout या gymming. तो ये बड़ा typical जो है history मिल जाती है, exercise induced urticaria. So आपने क्या खाया, अपने पास्ट दिन में क्या किया, ये सब जो आप रिमाइंड करेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि दिस इज पर्टिकुलर थिंग जो मुझे सूट नहीं करती है, दैट इज ट्रिगरिंग माय अर्टिकेरिया. एंड मैम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्टिकेरिया, हमने अभी बात की कि क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं. आई वुड रियली लाइक टू नो दैट व्हाट आर प्रिकॉशंस वन कैन टेक
and what are the do's and don'ts, if you can say the dietary do's and don'ts, or some activity, if somebody is having urticaria, or somebody can get urticaria due to particular things. So what are the do's and don'ts, and precautionary क्या precautions वो ले सकते हैं for preventing urticaria? Yeah. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. सी जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया में जा चुके हैं तो उनके लिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे टेक प्रिकॉशन जहां तक वो कर सकते हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस इज क्रॉनिक नाउ, सो इट्स गोइंग टू लास्ट फॉर say 1 year 2 years and we don't know until when. Acute urticaria में once the trigger is identified, पेशेंट इज एब्सोल्युटली फाइन, वहां इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं होती है. यू कैन, कभी कभी लोगों को स्ट्रेस हो जाता है कि अच्छा अब हम ये नहीं खा पाएंगे क्या, अब हम हमेशा ये नहीं खा पाएंगे. सो इन एक्यूट अर्टिकेरिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज नो नीड कि कोई आप फूड, बट इन जनरल for all of us to maintain a healthy lifestyle, to eat proper home cooked neat and clean food, drink lots of water, exercise daily, meditate, yoga, follow a proper lifestyle, wear loose comfortable clothing. So ये देखिए जो general measures हैं ये न सिर्फ हमें एक अच्छी स्किन और अच्छी लाइफ तो देते ही हैं, बट जो भी हमारी डिजीजेस हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं वो भी काफी हद तक प्रिवेंट होती हैं. तो होम कुक्ड फूड जितना हो सके खाएं, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है जो रोज ही कई लोग बाहर का खा रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रोन कर देगा for such kind of allergies because of the multiple things that are used which you don't know. Cleanliness could be an issue, so it is advisable कि आप साफ सुथरा खाना खाएं. once in a while it's okay, but wear loose comfortable clothing. chronic urticaria के लिए physical अगर factor है तो again temperature gradients को आप avoid करें, sun exposure avoid करें. अगर आप एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया के पेशेंट हैं तो प्रॉपरली अपनी मेडिसिन लें, एक्सरसाइज से पहले भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में आके कोई दिक्कत नहीं हो. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दवाइयों का बीच में छोड़ देना, जो कि मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, लेट योर डॉक्टर डिसाइड व्हेन टू स्टॉप द मेडिकेशन, नॉट यू कि अब 1 महीना हो गया आप छोड़ देते हैं. दिस इज द रॉन्ग वे. You have to taper the medicine so that you are completely off the disease and your quality of life is back to normal again. Absolutely right, ma'am. And as precaution is always better than cure, and you should eat healthy, as the doctor said. Home cooked food ज़्यादा से ज़्यादा खाएं. Junk food आप try करके कम खाएं. And as doctor said कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपकी दवाई अभी कहाँ तक चल रही है. डोंट डिसाइड बाय योरसेल्फ. मैम, आई थिंक बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि अब ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा और हो गया, आप बार बार दवाई खाएं. बट एज डॉक्टर सेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ फॉलो अप फ्रॉम योर डर्मेटोलॉजिस्ट. प्लीज डोंट डिसाइड दैट that you should stop your medicines. Doctor, sometimes it has seen that if some like father have urticaria or hives, it is also passed to the family members. Is it so? It is genetic? Urticaria is genetic, or it has been passed by some kind of infection, or you can say by touching some the clothes or something like that. Is it that true? It is like contact से क्या ये फैलता है urticaria? देखिए, अगर एक जने को अर्टिकेरिया है तो वो टच होने से इट इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज. बट जैसा कि आपने पूछा कि फादर से, बिकॉज अर्टिकेरिया में भी बहुत सारे जो पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, तो इसमें ऑटो इम्यून मैकेनिज्म इज वन विच इज पोस्टुलेटेड ऑल्सो. It is a hypersensitivity reaction to an allergen, everybody knows, but in some cases, in chronic urticaria especially, jahan autoimmune component involved hai, definitely it has a genes have a role to play. देखा गया है, not in all cases of urticaria, but chronic urticaria के वो लोग जिनमें autoimmune urticaria है, postulated है, तो definitely it can pass from the one generation to the other. Not that हर जने को अर्टिकेरिया है तो उनके बच्चों को होगा, because you don't know which component is playing there, but yeah, it can be. But directly contact करने से patient के कुछ नहीं होगा. That it doesn't spread like that. So it is not contagious, as you said. No, yeah.
So यानी कि घबराएं नहीं। किसी को बहुत ज्यादा देखने में बहुत रैश कई बार इतना सिवियर लगता है कि उनको कोई टच भी नहीं करना चाहता है, बट इट इज नॉट कंटेजियस एट ऑल, इट डजंट कम टू यू लाइक दैट। Right. So as doctor said, it is not contagious क्योंकि मैम कई बार हमारे फ्रेंड्स को अगर हम देख लेते हैं तो हमें लगता है कि इससे हमें थोड़े दिन दूर रहना है because it can pass. But as doctor said, urticaria is not contagious, so it is okay. And I think you should also refer to a doctor if you have some signs. Ma'am, when we talk about urticaria, the triggers, the treatment, everything, sometimes itchiness, redness is more, and it has been seen that रात में कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि it is worsening, the itching has started more, और कई बार उन्हें रात में ही समझ में आता है कि यार this is something, ये particular area में I have urticaria. So is it true that the urticaria is worsen at night? See, not urticaria in particular, but generally कई diseases होती हैं जिनमें night itch जो है वो prominent होती है। urticaria में as such there is nothing कि वो रात में ही बढ़ेगी itching, because urticaria can happen at any time. आप बैठे हैं, हो गया, रात में हो सकता है आपको कुछ भी नहीं हो। कई बार ये होता है कि पेशेंट्स जब सपोज आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, रात में कईयों का होता है कि हमने शावर लिया, देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ अर्टिकेरिया जो शावर के बाद ट्रिगर होते हैं। अगेन एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया इसका नाम है, स्विमिंग पूल में गए वहां हो गया। कई बार आप पूरा दिन काम करके आए हैं गर्मी में, बट नाउ यू आर रेस्टिंग एट योर प्लेस, आपने एसी चला दिया आराम से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे, देन इट सडनली अकर्स। कई बार सर्दियों में लोग बोलते हैं कि as soon as हम कपड़े बदलते हैं फिर वो शुरू होता है, because then again temperature difference has to play a role. सुबह से आप बड़े वार्म थे, फुल क्लोथ्स में थे, तो ये सारी चीजें हैं। rather than एक nocturnal itch जो है, it is not a feature of urticaria as such, but then there are other things which come into play. So the itching in urticaria can be at any time. ओके, सो इचिंग कभी भी हो सकती है, आर्टिकेरिया भी कभी भी ट्रिगर कर सकता है। आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों का जो आज हमें डॉक्टर ने बताई, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड, एंड अगर किसी चीज से आपको एलर्जी है तो उससे आप दूर रहें और अपना ध्यान रखें, एंड डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। एंड डॉक्टर, बिफोर वी एंड दिस सेशन, एनी टेक अवे मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस लाइव? Yeah, the takeaway message would be that whatever your skin condition is, it should be properly diagnosed. Once it is diagnosed, you don't have to panic because you are now in expert hands. Let them manage your disease and guide you properly through it. There is no need to panic. It's an absolutely curable disease, because the quality of life of chronic urticaria patients is really sometimes they become very depressed. Some patients think that it will not go, it will stay forever, but it's not like that. You, with the help of your specialist, can fight and you can win over it with a healthy lifestyle, refraining from any as I said, outside foods, alcohol, too many medications, painkillers. There are so many things that you can avoid, and you can it is 100% curable. And whatever your concern, you should immediately revert to your doctor rather than self-medicate and panic. That's it. That is absolutely amazing takeaway message, that don't panic and consult your dermatologist. It is very important, as doctor said. And doctor, thank you so much for your valuable time. It is a very informative session, and I must say that all we were talking about the triggers, the treatment, and everything. I hope also you answered all of your questions very, very, very well. Thank you so much, Dr. Lata Rajwani, for your valuable time. It has been a very informative session for our viewers, and I am sure they will use this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting urticaria. And in case they get to see such symptoms, they now know that instead of self-medication, as you said, it's better to approach a nearby dermatologist. It's great to hear from you, and we really look forward for many such sessions in the coming time for our viewers. Thank you so much for having me.
Thank you. Thank you so much, Doctor. And thank you so much, viewers, for your participation in today's session. And to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our Facebook page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you so much, everybody. Good day to all. Yeah.